Hello students, welcome to Educational Suppliers. So today we are going to study general exceptions of Indian Penal Code part 3, which is from section 96 to 106. So let's begin. So here we have classified exceptions under 7 categories. Part 1 will consist of mistake of fact, which is section 76 and 79, judicial acts section 77 and 78, and accident section 80. Part 2 will consist of section 81 to 86 and 92 to 94, which is absence of criminal intent, consent section 87 to 91, and trifling at section 95. And part 3 will consist of right of private defense, which is section 96 to 106. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 विच इज प्राइवेट डिफेंस, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 96 to 106. So let's start the right of private defense related sections, that is from section 96 to 106. So now let's see the introduction regarding right of private defense. I.P.C की जो sections है 96 to 106, वो right of private defense of person and property के regarding बात करते हैं. एंड ये जो भी सेक्शंस है 96 to 106, ये एक साथ पढ़ी जाएगी टू नो द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ दिस डिफेंस. Section 96 talks about things done in private defense. It states that nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. अगर कोई चीज right of private defense के exercise में की जाती है तो वो offense नहीं है. इसका मतलब कि right of private defense हम exercise कर रहे हैं तो वो offense नहीं माना जाएगा. प्राइवेट डिफेंस का मीनिंग है राइट इनहेरेंट इन मैन विच इज द ड्यूटी टू हेल्प हिमसेल्फ. इनहेरेंट मतलब राइट जो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है मैन के अंदर. In one case, which is Dharam versus State of Haryana, it was held that the basic principle underlying the doctrine of right of private defense is that when an individual or his property is faced with danger and immediate aid from the state machinery is not readily available, that individual is entitled to protect himself and his property. So, the law does not require a law-abiding citizen to behave like a coward when confronted with an imminent unlawful aggression. There is nothing more degrading to the human spirit than to run away in face of danger. इसका मतलब एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को कभी भी डरपोक की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए जब वो अनलॉफुल अग्रेशन या अनलॉफुल डेंजर फेस करता है. सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज दस डिजाइन्ड टू सर्व अ सोशल पर्पस एंड डिजर्व्स टू बी फॉस्टर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. इस चीज का प्रूफ कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया गया है, ये प्रूव करने का जो ओनस है वो उस पर्सन पे होता है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की मांग करता है. भले ही एक्यूज ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का स्पेशली प्ली नहीं मांगा है, फिर भी एक्यूज को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए छोड़ दिया जाएगा अगर उसने कोई एक्ट किया है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज में ही किया है. राइट एक्सरसाइज तभी होगा जब रियल एंड इमीडिएट थ्रेट हो. जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव है बट प्यूनिटिव नहीं है, मीन्स पनिशेबल नहीं है. सिर्फ खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए राइट का यूज नहीं होना चाहिए. राइट का डेलिबरेटली गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या फिर किसी ने आपको पहले इंजरी पहुंचाई है उसका रिवेंज लेने के लिए राइट का यूज नहीं होना चाहिए. राइट कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइजेस and continues till the apprehension continues, and this right is subject to limitation mentioned in section 99. So now we will see section 97, which talks about right of private defense of the body and of property. हर व्यक्ति के पास right of private defense of body and property है, लेकिन वो subject to restrictions है जो section 99 में mentioned है. So right of private defense can be used in subject to restrictions mentioned under section 99. Secondly, अगर आपको लग रहा है कि offenses such as theft, robbery, mischief और criminal trespass जैसे offenses आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाला है या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाला है, whether प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल, then you have a right to defend your property या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी आप डिफेंड कर सकते हैं. आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को तब भी यूज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि अटेम्प्ट भी होने वाले ऑफेंसेस का सच एज थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास.
So the first clause of this section provides for the defense of body against any offense affecting human body. The second clause provides for the defense of property against an act which amounts to commission of certain offenses. Even a stranger may defend the person of property of another person, and in Sikandar Singh versus State of Bihar, it was held that the right to defend does not include a right to launch an offensive or aggression. So now we will see section 98, which is right of private defense against the act of a person of unsound mind, etc. इस सेक्शन में अनसाउंड माइंड के पर्सन के अलावा इन्फेंसी भी इंक्लूडेड है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है या कोई पर्सन इंटॉक्सिकेट होके कोई एक्ट कर रहा है एंड वो ऑफेंस है एंड जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, देन हमारे पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट द एक्ट ऑफ सच अ पर्सन. सो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या मैच्योरिटी नहीं है उस ऑफेंस के एक्ट को समझने की कि जो वो ऑफेंस कर रहा है उसका नेचर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो उसे पता नहीं है, देन वो व्यक्ति अगर ऑफेंस कर रहा है तो हमारे पास भी ये राइट है कि हम उस पर्सन के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट कमिट कर सकते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल. Jed under the influence of madness attempts to kill A. Jed is guilty of no offense, but A के पास भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो उसके पास होता जब Jed साउंड माइंड का होता. So to exercise the right, the physical or mental capacity of the attacker is no bar, whether with or without mens rea. So now we will see section 99, which talks about act against which there is no right of private defense. कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनके अगेंस्ट आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा. सेक्शन 99 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. सो फर्स्ट पॉइंट बोलता है अगर कोई एक्ट ऐसा किया जा रहा है जिसका रीजनेबल एप्रीहेंशन डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं है बाय पब्लिक सर्वेंट, देन वो एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा अगर वो एक्ट गुड फेथ में हुआ है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो जो एक्ट परफॉर्म हो रहा है वो जस्टिफाइबल नहीं है बाय लॉ. बट अगर जो एक्ट परफॉर्म हो रहा है उसका रीजनेबल एप्रीहेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट है, देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे कोई पर्सन एक्ट करता है या कर रहा होता है या करने की कोशिश करता है तो ऐसे एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं हो सकता है अगर वो एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में हो रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो ये जो डायरेक्शन है ये स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल नहीं है बाय लॉ. थर्ड पॉइंट ये है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस जब अपने पास टाइम है कि अपन प्रोटेक्शन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी का. फोर्थली जो ये राइट है वो वहां तक ही एक्सटेंड होगा जहां तक आपने रीजनेबल हार्म पहुंचाया है. अगर आप अननेसेसरी ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड. सो नाउ वी विल सी टू एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग सेक्शन 99. एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि जहां पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है एंड उसको पता नहीं होता कि जो पर्सन अटैक कर रहा है एंड जिसके खिलाफ वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, देन उस पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो इन गुड फेथ ऐसा सोचता है कि अटैकर कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है. एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कि उन केसेस में जहां पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है और उसको पता नहीं होता कि जो पर्सन अटैक कर रहा है या जिसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा रहा है वो ऐसा एक्ट पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के अनुसार कर रहा है, तो ऐसे में उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर प्रोटेक्शन मिलेगी. लेकिन कब तक मिलेगी? अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स, या फिर इफ ही हैज अ अथॉरिटी इन राइटिंग unless he produces such authority if demanded. So now we will see section 100, which is when the right of private defense of the body extends to causing death. Section 100 explain करता है कि right of private defense
किंग केसेस में मार देने तक एक्सटेंड करता है. सो देर आर 7 सिचुएशंस इन सेक्शन 100 वेयर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. सो फर्स्ट इज असॉल्ट, जिससे आपको डेथ का एप्रीहेंशन हो. सेकेंड इज असॉल्ट, जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन हो. थर्ड इज असॉल्ट, जहां आपको लगता है कि आपका रेप होने वाला है. फोर्थ इज असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट. फिफ्थ इज, अगर आपको लग रहा है कि आप किडनैप या एब्डक्ट होने वाले हो. सिक्स्थ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रॉनफुली कन्फाइन किया जाएगा एंड पब्लिक अथॉरिटी की मदद आप नहीं ले पाएंगे. एंड जो ये 7th पॉइंट है, ये इंसर्ट हुआ था बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच इज नोन एज निर्भया एक्ट. इसमें ये बोला गया था व्हेन एन एसिड इज थ्रोन और एडमिनिस्टर्ड, या अटेम्प्ट किया जाता है थ्रो और एडमिनिस्टर्ड एसिड करने के लिए जिससे ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा, देन ये सब सिचुएशंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. सो नाउ वी विल सी सेक्शन 101 which talks about when such right extends to causing any harm other than death. So section 101 कहता है कि अगर right of private defense आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज करते हुए आप किसी पर्सन को जान से मारने के अलावा आप कब उस पर्सन को एनी अदर हार्म पहुंचा सकते हैं. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ आपको डेथ कॉज नहीं करनी है, कोई एनी अदर हार्म आप पहुंचा सकते हैं. सो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई आप ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो सेक्शन 100 की जो कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी उनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है, देन जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किसी बंदे की डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड नहीं होगा, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 99 आप वॉलेंट्री कॉज कर सकते हैं एनी हार्म अदर देन डेथ. सो नाउ वी विल सी सेक्शन 102 which talks about commencement and continuance of the right of private defense of the body. So ये सेक्शन ये बताता है कि आपका right of private defense जो है वो कब से चालू होगा until how much time it will continue. So इसका सिंपल जवाब है जब तक आपको reasonable apprehension रहेगा of danger जो आपके बॉडी को पहुंच सकता है तब तक आपके पास वो राइट है. जैसे ही आपका reasonable apprehension खत्म हो जाए वैसे ही आपके पास राइट नहीं रहेगा. सो अब जो 3 सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड है. सो सेक्शन 103 टॉक्स अबाउट व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. सो सेक्शन 103 में सिचुएशंस दी गई है कि कब कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं. सो यहाँ 4 सिचुएशंस दी गई है. फर्स्ट इज रॉबरी, सेकेंड इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड इज मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल जो या तो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रहा है या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज हो रहा है. फोर्थ इज थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास जहां आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. सो नाउ वी विल सी सेक्शन 104 विच टॉक्स अबाउट व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो कि सेक्शन 103 में जो कैटेगरी पढ़ी थी उनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है, देन जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किसी बंदे की डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड नहीं होगा, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 99 आप वॉलेंट्री कॉज कर सकते हैं एनी हार्म अदर देन डेथ. सो नाउ वी विल सी सेक्शन 105 which talks about commencement and continuance of the right of private defense of property. सेक्शन 105 ये बताता है कि right of private defense of property कब शुरू होता है and till what time it continues. So the right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. So right of private defense of property कब तक कंटिन्यू होगा वो 4 केसेस में दिए गए हैं. सो एक एक करके हम देखते हैं. सो फर्स्ट इज थेफ्ट. सो अगर थेफ्ट हो रहा है देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी विल कंटिन्यू जब तक ऑफेंडर आपकी प्रॉपर्टी को एफेक्ट पहुंचा रहा है. जैसे ही वो आपकी प्रॉपर्टी से भाग जाता है या आपने पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस ऑब्टेन कर ली है या आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी है देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है. नेक्स्ट केस गिवन अंडर दिस सेक्शन इज रॉबरी. So right of private defense of property
अगेंस्ट रॉबरी कब तक कंटिन्यू करती है? अगर जो ऑफेंडर जो रॉबरी करने आता है वो क्या करता है, किसी बंदे की डेथ कॉज कर देता है या किसी बंदे को हर्ट पहुंचाता है या वो रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके रखता है, और जब तक आपको फियर रहता है कि वो आपकी इंस्टेंट डेथ कर दे या वो आपको इंस्टेंट हर्ट पहुंचाए या वो आपको इंस्टेंटली पर्सनली रिस्ट्रेन करके रखता है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहता है। इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास एंड मिसचिफ, जब तक वो ऑफेंडर कमिट करता रहेगा क्रिमिनल ट्रेसपास एंड मिसचिफ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगा। इन केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, it continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues. So in this way, right of private defense of property continues in different cases. So now we will see section 106, which talks about right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to innocent person. तो अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट असॉल्ट एक्सरसाइज होता है जहां आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेथ कॉज होने का, द एंड जो डिफेंडर है वो बिना हार्म पहुंचाए इनोसेंट पर्सन को अपना राइट सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, देन इन सच केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, विच मीन्स दैट जो डिफेंडर है उसे प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर दिस सेक्शन। So now let's see the illustration। जो A है उसके ऊपर ग्रुप ऑफ पीपल अटैक कर देते हैं एंड वो ग्रुप A की मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, और ये बात क्लियर है कि यहाँ अगर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है देन उसको मॉब के ऊपर फायर करना पड़ेगा। बिना मॉब के ऊपर फायर किए बिना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, एंड इस मॉब में कुछ चिल्ड्रन भी उसके आसपास है। सो अगर ए फायर करता है एंड कोई चिल्ड्रन को हार्म पहुंचता है तो यहाँ ए कमिट कोई भी ऑफेंस नहीं करता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ जनरल एक्सेप्शंस पार्ट 3। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड